Yes, very good afternoon, my friends. Good afternoon, everyone. अरे जोरात आवाज येऊ द्या, नाही तर त्यांना वाटत वर्गात कोणीच आलं नाही आज. Very good afternoon, my friends. I welcome you to the very first session of mercantile law. This subject of mercantile law is in your first semester of second year. In short, your third semester. This is subject which is considered in your third semester of SY BCom. I am Professor Dinesh Sharma. I'll be taking care of your theory subjects, where I'll be teaching you 3 subjects, including law, principle of business management, and also banking and finance, the elective subject. So these 3 subjects of theories will be taught by me. We'll be having 45 minutes of session every day, where I'll be covering all these 3 subjects. We have other faculties, including Pankaj Aboti sir, my wife Bhakti Sharma, who will be teaching you other subjects. There is also subject of costing, that will be taught by ma'am. Taxation and corporate accounting will be taught by Pankaj sir. The idea behind starting this particular integrated course of BCom is to ensure that we develop those skills in my students who will be learning BCom from me, which can promise them a good career after completion of their graduation. Once you complete your graduation, ultimately either there are 2 options in hand. Either we go for some job or career, or either we go for post-graduation. Okay? In any of the case, you should be confident enough that I have done my graduation with all conceptual clarity and learning, and with all the skills which will help me in my further career. Let me make it very clear on this first note that your degree and your stream doesn't matter. What would ultimately matter for a good career is your skills. What would matter is your skills. You have to develop your skills. In the prima facie session of introduction, where I asked each and every one you to introduce yourself in 2 minutes for English, you could hardly say, my name is Munjaji and nothing else. Yes, Munjaji? So you need to develop these skills. The basic skill you need to develop to have a good career is good communication. Until and unless you have good communication, you have command communication, you cannot have a good career. You go to any company, you go to any stream, you go to any industry, the basic thing they will require from you when you'll ask for a job, how good is your communication. Even if you have 90% in your graduation, but you go for a job interview and you are not able to communicate your things with good communication skills, you will never get a job. You need to develop certain skills with you. The basic skill which is required for a good career is good communication. So try to have good communication skills. We'll have certain additional courses for development of communication skills among students. We'll have certain sessions for spoken English and also some sessions for improvement of the communication skills after you are little bit fluent with English. Right? So let us start with the session of mercantile law. Let me just help you to understand how I teach differently. Normally what you see, your teacher will always start with the syllabus directly. And if you are learning in English medium, the point to be understood is you should learn in English medium as well. There is no point in learning in Marathi. English is a global language. We are proud to be Maharashtrian, we are proud to speak Marathi, but my dear friends, when you go for a job interview, questions will not be asked in Marathi. They will be asked in English. So your learning should be in the global language of English itself. Before I start with the session, let me give a brief overview of what we are going to exactly learn. तो जब हम शुरू करते हैं,
शुरू करने से पहले पहले सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करो। बीकॉम फर्स्ट ईयर में कहीं पर भी लॉ इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। आपके यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर के सिलेबस में लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले लॉ आपने 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। कौन से सब्जेक्ट में? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट लॉ बेस्ड है, जहां पर पहली बार आपने लॉ रिलेटेड सेक्शंस पढ़े थे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, वट एवर यू स्टडीड एंड वट एवर यू लर्नड वर ओनली फ्यू बेसिक सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। You all have learned in commerce, you have learned secretarial practice. I was telling you about what do you learn is important. How much you score is not important. You want to test? Question. My question to you, all of you, you'll have to tell me the answer. Let's see who can give the answer. How many sections are there in the Companies Act? 2030? 2030 sections? I'm not asking you the name. The name is the Companies Act 2013. How many sections are there in the Companies Act 2013? Yes, my dear friend. Anybody? Companies Act 2013 ये लेटेस्ट लॉ है, नाम है उसका। मैं पूछ रहा हूं कंपनीज एक्ट 2013 में कितने सेक्शंस है? कंपनीज एक्ट के सेक्शंस आपने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में सीखे हैं, 11th 12th में एसपी पढ़ा है। क्या कभी आपके टीचर ने ये तो बताया क्या कंपनीज एक्ट में सेक्शन कितने हैं? किसी को पता है क्या क्लास में? यहां हम चूक रहे हैं। ऐसे सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। मेरे 11वीं के बच्चे को भी मालूम है कि कितने सेक्शंस है। देयर आर 470 सेक्शंस इन द कंपनीज एक्ट 2013। कितने सेक्शन है? 470 सेक्शंस। और उस 470 सेक्शन में एक व्यक्ति का करियर बनता है, जिस करियर का नाम है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी सीएस का कोर्स उस 470 सेक्शन के भीतर होता है। द कंपनीज एक्ट 2013 इन ऑल हैज 470 सेक्शंस। देख लो, कंपनीज एक्ट तुमने देखा है, कंपनीज एक्ट तुमने सीखा है। कंपनीज एक्ट देखने के बाद, कंपनीज एक्ट सीखने के बाद, 11th 12th में एसपी पढ़ने के बाद तुमको बेसिक पता नहीं कि कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शंस है। क्या काम का ऐसा नॉलेज? क्या काम के तुम्हारे 90 मार्क्स? कोई काम का नहीं। बेसिक लर्निंग प्रोसेस करेक्ट या सही होना बहुत जरूरी है। अब याद रखना, अगली बार कोई पूछे तो कंपनीज एक्ट का नाम मत बताना। कितने सेक्शंस है? 470 सेक्शंस। There are 470 sections in the Companies Act 2013. Now, this is the first time in the graduation level you will be introduced to law. आपने 11th और 12th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में जो कुछ भी सेक्शंस है, जो कुछ भी कंपनीज लॉ के रिलेटेड जो भी सेक्शंस, थोड़े बहुत सेक्शंस आपने 15-20 सेक्शन देखे हैं, दे आर कवर्ड इन द सेकेंड सेमेस्टर ऑफ सेकेंड ईयर, दैट इज 4th सेम। 4th सेमेस्टर के अंदर आपको कॉर्पोरेट लॉ है। वहां पर 11th और 12th में पढ़ा हुआ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का कुछ सिलेबस है, उसके अलावा कुछ और एडिशनल सेक्शंस दिए गए हैं। सो आपका 4th सेमेस्टर सेकेंड ईयर का इज अबाउट कॉर्पोरेट लॉ, जहां पे कंपनीज एक्ट 2013 के सारे सेक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। कंपनीज एक्ट का कोई भी पार्ट हमें सेमेस्टर 1 में यानी 3rd सेमेस्टर में नहीं दिया गया है। अगर मैं सेमेस्टर 1 बोलूं तो सेकेंड ईयर का 1st सेमेस्टर समझ लो, ठीक है? वो बार बार 3rd 1 ऐसा मेरे को कंफ्यूज होता है। अगर मैं 1st सेम बोलूं तो सेकेंड ईयर का 1st सेम, सेकेंड ईयर का 1st सेम मर्केंटाइल लॉ के ऊपर है। व्हाट इज मर्केंटाइल लॉ? सब्जेक्ट पढ़ना है अपने को। व्हाट इज मर्केंटाइल लॉ? व्हाट इज मर्केंटाइल लॉ? व्हाट इज कॉर्पोरेट लॉ? 1st सेम मर्केंटाइल लॉ, सेकेंड सेम कॉर्पोरेट लॉ। बताओ मुझे फर्क, कॉर्पोरेट लॉ और मर्केंटाइल लॉ में फर्क क्या है? जो ट्रेड होता है, जो बिजनेस होता है, जो व्यवहार होते हैं, ट्रेड बिजनेस व्यवहार जो होता है, उनके रिलेटेड जो भी कानून है उन्हें हम मर्केंटाइल लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मर्केंटाइल लॉ। व्हाट इज मर्केंटाइल लॉ? द लॉ विच आर रिलेटेड टू ट्रेड, रिलेटेड टू बिजनेस, जो व्यवहार होते हैं, जो बिजनेस होते हैं। जैसे आपने सोयाबीन बेचा मुझे, मैंने आपको पैसे दिए, एक व्यवहार हुआ, एक ट्रेड हुआ।
इन व्यवहारों को कहां कवर किया जाता है? मर्केंटाइल लॉ के अंतर्गत। मैंने इसका मर्डर कर दिया, वो मर्केंटाइल लॉ के अंदर नहीं आता, वो आईपीसी के धाराओं के अंतर्गत आता है। और आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, इज नॉट एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मर्केंटाइल लॉ। वो मर्केंटाइल लॉ का पार्ट है क्या? नहीं। मर्केंटाइल लॉ में क्या आएगा? चीजें बेची है, चीजें खरीदी है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सारे पार्ट जो व्यवहार, बिजनेस से, ट्रेड से रिलेटेड है, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द mercantile law. So the mercantile law in semester 1 covers the syllabus which is related to business and trade. Okay. Whereas the second semester consists of corporate law, मतलब specific Companies Act 2013. सेकेंड ईयर का सेकंड सेम प्योरली कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर मर्केंटाइल लॉ के ऊपर है। इस मर्केंटाइल लॉ के सिलेबस में हम मर्केंटाइल यानी ट्रेड के रिलेटेड के नियम और कानूनों को समझेंगे। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट का काम कॉमर्स और ट्रेड में होता है, तो ट्रेड में जो कानून एप्लीकेबल है उनकी जानकारी होना जरूरी है। जरूरी है ना? कल को तुम कहीं जॉब में जाओगे, कोई बिजनेस करोगे, किस बिजनेस में आप जॉब करने जा रहे हो, उस बिजनेस को कौन से कानून एप्लीकेबल है ये तुमको पता होना चाहिए। इसीलिए लॉ को बतौर सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So the first semester which we have to learn in the second year syllabus is all about mercantile law, which talks about trade and trade related transaction. Business और business related transactions को हम जिस हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं, जिन कानूनों के अंदर पढ़ते हैं, उस कानून के उस पार्ट को हम कहते हैं मर्केंटाइल लॉ। क्या कहते हैं? मर्केंटाइल लॉ। अगर हम सिलेबस को देखें तो आपके सेमेस्टर के सिलेबस में 5 चैप्टर पूरे हैं। पूरे कितने चैप्टर है? 5। पहला चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पूरे 5 एक्ट सीखने हैं। कितने? 5। पहला एक्ट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेकंड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सेकंड क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यहाँ पे दिया नहीं है। कोई भी कानून होता है तो उसका स्टार्टिंग द से होता है। कहां से होता है? द से। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेक्स्ट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एंड फाइनली द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या हुआ? सॉरी, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 4 चैप्टर है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और 5th में है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इस सेमेस्टर के इस लॉ के सिलेबस में 5 मर्केंटाइल लॉ मैं आपको सिखाऊंगा। पूरा इन डेप्थ नहीं होता बेटा, क्योंकि कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन है। 470 सेक्शन सीए इंटर के भी सिलेबस में नहीं है। 70-80 सेक्शन सीए इंटर में है, बचा कुछ सीए फाइनल में है। तो अगर 470 सेक्शंस का पूरा सिलेबस अगर तुमको सेकंड ईयर में दे दिया तो तुम्हारा 1 साल पूरा लॉ पढ़ने में जाएगा, वो भी एक एक्ट पढ़ने में। इसलिए थोड़े थोड़े सेक्शन, इंट्रोडक्टरी सेक्शंस आपको दिए गए हैं कि एग्जैक्टली आपको आइडिया है पार्टनरशिप एक्ट माने क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी क्या, कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है। ये सारे चीजों का एक बेसिक ओवरव्यू आपको ग्रेजुएशन के इस सेमेस्टर में इस मर्केंटाइल लॉ के सेक्शन से मिलेगा। हम कितने एक्ट सीखने वाले हैं? 5। कितने एक्ट सीखने वाले? 5। व्हाट इज द फर्स्ट एक्ट वी हैव टू लर्न? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेकंड इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। थर्ड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फोर्थ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। and final 5th the consumer protection act 1986. These are the 5 acts we have to learn in the first semester of mercantile law of second year. Okay, अब चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करो। ऐसे बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा था मैं। कैसा पढ़ा था? एकदम अच्छे से पढ़ा था। कैसे पढ़ते हैं देखो।
सिलेबस का ओवरव्यू मैंने दे दिया आपको, सिलेबस के बारे में, चैप्टर के बारे में, और चैप्टर की शुरुआत अपन कल करेंगे। अभी कुछ दूसरी चीजें आपको सिखाता हूं। मैं आपको यहां पे किताबी कीड़ा या सिलेबस का कीड़ा नहीं बनाना चाहता, मैं आपको दोनों का मिक्सचर देना चाहता हूं। तुम सोचने पे मजबूर हो जाओ कि थ्योरी सब्जेक्ट को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। आपने कभी टेक्स्ट बुक के बाहर कभी पढ़ा नहीं है। मैं यहां पे मिक्सचर करूंगा, टेक्स्ट बुक गिवन कंटेंट प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज, इन दोनों का मिक्सचर करेंगे। इस दोनों का जब मिक्स करके जो खिचड़ी बनेगी, जो भेल बनेगी, वो काफी स्वादिष्ट होगी, जो आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाएगी। नॉर्मली आपका टीचर तो पहले दिन से ही शुरू हो जाता कॉलेज का, दे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करा, बस इंग्लिश को मराठी में बोलने का हो गया, इंग्लिश मीडियम पढ़ा दिया। ऐसा पढ़ाना नहीं होता। अपन क्या सीख रहे हैं? मर्केंटाइल लॉ। अभी बोलना मत, खाली क्लास में पहले दिन बैठ के हंस लेना। क्योंकि जिस दिन आपका मर्केंटाइल लॉ का कॉलेज में लेक्चर शुरू होगा, आपका टीचर पहली बात ये कभी बताएगा नहीं कि मर्केंटाइल लॉ का मतलब क्या है। और उतने क्लासरूम में बैठे वाले 100, 200, 300 स्टूडेंट में तुम अकेले ऐसे विद्यार्थी होगी जिसे पता होगा मर्केंटाइल लॉ का मतलब क्या है। तो पहले दिन लेक्चर में बैठो ना कॉलेज में, बाजू वाले को खूनी करना, सांग रे मर्केंटाइल लॉचा अर्थ काय है। थोड़ा सा शान मारने का ना, तुम मेरे स्टूडेंट हो, बोल बोलेगा मर्केंटाइल लॉ काय माहित नहीं, सांगा लो मास्टर। मास्टर कुछ मालूम नहीं, वो क्या सिखाएगा बेचारा, है ना। तो मर्केंटाइल लॉ क्या है? ट्रेड या बिजनेस से रिलेटेड कानूनों को हम मर्केंटाइल लॉ कहते हैं। ट्रेड और बिजनेस से रिलेटेड। अब मुझे बोलो, मर्डर में चेक का कुछ काम है क्या? तो चेक रिलेटेड ट्रांजैक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड है। इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहां पर आया? मर्केंटाइल लॉ में। कॉन्ट्रैक्ट यानी व्यवहार, किसी भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट करना, चीजें लेना बेचना, यह कॉन्ट्रैक्ट में आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कहां है? मर्केंटाइल लॉ में। पार्टनरशिप, दोस्त साथ में मिलके कोई बिजनेस शुरू करते हैं। आप दोनों ने मिलकर कोई बिजनेस शुरू किया, जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। वो बिजनेस कैसे चलता है, उसके लिए कानून है, जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर से ये कानून किससे रिलेटेड है? बिजनेस से। सो वो सारे एक्ट, वो सारे कानून जो बिजनेस और ट्रेड से रिलेटेड है, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मर्केंटाइल लॉ। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मर्केंटाइल लॉ। कॉर्पोरेट लॉ टॉक्स अबाउट ओनली वन एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013। अपने को 5 दिए हैं, इसके अलावा भी और भी एक्ट है जो मर्केंटाइल लॉ में आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एलएलपी एक्ट 2008, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। जैसे पार्टनरशिप होता है, वैसे एक और कंसर्न होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को जो एक्ट एप्लीकेबल है, दैट इज कॉल्ड एज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। दैट इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मर्केंटाइल लॉ। लेकिन वो जो है हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिलेबस शुरू करें। मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ क्या होता है ये समझ गया। बिजनेस से रिलेटेड लॉ यानी मर्केंटाइल लॉ। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सिर्फ किताबी कीड़ा होकर किताबी के क्वेश्चन आंसर पता हो के मतलब नहीं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। इसलिए अभी बचे हुए टाइम में जो हम सेशन में डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट लॉ। ठीक है। माय क्वेश्चन, लेट्स सी हु कैन आंसर। हमारे देश में लॉ कैसे बनता है? हाउ इज अ लॉ मेड? लॉ के सब्जेक्ट को बाद में पढ़ेंगे, पहले तो ये तो समझ लो कि कानून बनता कैसे है। एसपी पढ़े हो ना 11th 12th में? हाँ, अब बताओ, कभी तुम्हारे सर ने बताया है? तुम रुको रे जरा, तुम रुको, तुमको बताया मैंने, बाकियों को बताने दो। लॉ कैसे बनता है पता है? भारत में कानून कैसे बनता है पता है? पता है तो हाँ बोलो, वरना छोड़ दो। पता है? पता है तुम्हें कानून कैसे बनता है? हाँ या ना? हाँ, कैसे बनता है? संविधान के आधार पर। यस, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कानून बनता है। लेकिन कानून बनता कैसे है, पारित कैसे होता है, लाया कैसा जाता है, कानून को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, ये तो पता है क्या? नहीं। तो हमको यही मालूम नहीं कि कानून लाया कैसे। अब मान लो तुमको लाना है इंडियन पार्टनर, तुम कानून मंत्री हो देश के,
Munzaji is the Kanun Mantri of India. Is the Kanun Mantri of India. Being the Kanun Mantri, it is his responsibility to implement a law. Right? अब उसको बोला है कि तुम एक कानून लेके आओ. मुंजा जी को क्या बोला? मुंजा जी आप एक काम करो, आप एक कानून बनाओ. बोला कानून क्या होता है, उसके सेक्शन क्या है वो तो मालूम है, लेकिन कानून बनता कैसे वो हमारे दिनेश सर ने नहीं सिखाया. ऐसे मत करना. तुम मेरे स्टूडेंट हो तो तुम्हें हर चीज पता होनी चाहिए. राइट फ्रॉम द बेसिक थिंग कि कानून बनता कैसे है. राइट फ्रॉम द बेसिक थिंग कि कानून बनता कैसे है. हमको सेकेंड ईयर में 5 एक्ट सीखने हैं, 5 लॉ सीखने हैं, ठीक है, लेकिन लॉ कैसे बनता है अगर यही पता नहीं तो लॉ पढ़ के कुछ फायदा है क्या? नहीं. खाने के लिए मस्त लगता है ना, पनीर की सब्जी, तंदूर रोटी, बटर मार के कड़क कर एकदम फर्स्ट क्लास, लेकिन बनती कैसी है पता होना चाहिए, है ना. तो बेसिक कानून क्या है ये तो पढ़ लेंगे हम, लेकिन कानून बनता कैसे है इसका नॉलेज अपने पास नहीं है तो कानून पढ़ के कुछ फायदा है क्या? नहीं. तो ध्यान से सुनो कि देश में कानून बनता कैसे है. अगर मुंजा जी कानून मिनिस्टर है और इनको बोला है कि पार्टनरशिप को लेकर नया लॉ लेकर आइए, जिसका नाम इन्होंने रखा है द पार्टनरशिप एक्ट 2021, अभी लॉ को लेकर आना है. बतौर कानून मंत्री हमारे देश में कानून बनाने का प्रोसीजर क्या है, ठीक है, अंडरस्टैंड. अभी हमारे यहाँ किसकी सरकार है? मोदी जी की. मोदी जी वर्जन 2.0 है ना, पार्ट 2. मोदी जी पार्ट 2. मोदी जी के कुछ मिनिस्टर है जिसको हम कहते हैं कैबिनेट. क्या कहते हैं हम? कैबिनेट. तो जब कभी भी कोई नया कानून आता है, डायरेक्ट कानून नहीं आता, सबसे पहले उसका बनता है बिल. न कोई हिंदी में न कोई इंग्लिश में समझाता. फिर बोलेंगे सर बोले थे अभी आप इंग्लिश में बोलेंगे, यू स्टार्टेड टॉकिंग इन हिंदी, दिस इज नॉट फेयर. ओके, नाउ देयर आर सर्टेन मिनिस्टर्स who work along our Prime Minister Narendra Modi. Those ministers collectively form a committee which is called as cabinet ministers. Which is called as cabinet minister. How is a law framed? How is a law enacted? Understand. Whenever a law is to be made, first a bill is presented in the cabinet. पहले क्या बनता है? बिल. बिल को कहां पेश किया जाता है? कैबिनेट में. मतलब जो सब मिनिस्टर्स होते हैं उन मिनिस्टर्स के सामने वो पेश किया जाता है. A bill is prepared and it is presented before the cabinet. First the cabinet approves the bill. कैबिनेट बिल को अप्रूव करती है. कैबिनेट ने, मंत्रियों ने अप्रूव कर दिया तो कानून बन गया क्या? डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, डेमोक्रेसी में है. डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबकी सहमति से सब चीजें हो सकती है. पार्लियामेंट का सिस्टम सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर चलाते हैं क्या? नहीं. हमारे देश के चुने गए सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा और राज्यसभा में काम करते हैं, लोक प्रतिनिधि सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर है क्या? नहीं. ऑल दोज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु आर वर्किंग इन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा. सबसे पहले द बिल इज प्रेजेंटेड इन द कैबिनेट मीटिंग. द कैबिनेट मिनिस्टर अप्रूव द बिल. The bill is approved by the cabinet ministers. After the bill is presented and approved by the cabinet minister, then that bill is put to discussion in the first house of the parliament, that is Lok Sabha. It is put to discussion in Lok Sabha. लोक सभा में बिल पेश किया गया, डिबेट चालू है, कोई चिल्ला पुकारा कर रहा, कोई जूते फेंक के मार रहा. अपने इंडिया में कुछ भी हो सकता है, कोई शाही फेंक के मार रहा, कुछ भी करते हैं अपने आप. तो जब कभी भी कोई कानून बनाया जाता है तो पहले उसको बनता है बिल. That bill is presented in पहले it is presented in cabinet meeting. After the cabinet approves the bill, then that bill is presented in the Lok Sabha. Still it is a bill. Still it is a bill. When that bill is presented in Lok Sabha, it is discussed in the Lok Sabha. So Lok Sabha में जितने भी सांसद, जितने भी member of parliament, लोक सभा सदस्य होंगे, they debate on that particular bill. कुछ लोग उसमें बदलाव की मांग करते हैं, कुछ लोग उसमें चेंजेस की मांग करते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर डिबेट करते हैं, कुछ लोग उसके अंदर के कुछ सेक्शंस को कट करने की बात करते हैं. ये सारा डिस्कशन लोकसभा में होता है. सारी डिस्कशन की प्रक्रिया, आफ्टर ऑल द डिस्कशन इज एंडेड,
देयर इज अ वोटिंग ऑन द बिल, देयर इज अ वोटिंग ऑन अ बिल, वोटिंग ली जाती है लोकसभा में. When the bill is passed by majority in Lok Sabha, then it is sent to Rajya Sabha. लोकसभा में इन्होंने बनाया कानून का जो बिल है, पहले वो लोकसभा में लाएंगे, लोकसभा में पेश करेंगे, लोकसभा में मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाएगा. द बिल इज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द कैबिनेट मीटिंग. आफ्टर गेटिंग अप्रूवल इन द कैबिनेट मीटिंग, इट इज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन लोकसभा. आफ्टर बीइंग प्रेजेंटेड इन द लोकसभा, इट इज पास्ड बाय मेजोरिटी. It is passed by majority. Once the bill is passed by majority in the Lok Sabha, then it is passed on to the Rajya Sabha. पहले लोकसभा में डिस्कशन होगी, लोकसभा में वोटिंग होगी, लोकसभा में अगर बिल पे मेजोरिटी की सहमति आई तो वो आगे बढ़ता है. लेट्स से 100 लोग लोकसभा में है और सिर्फ 40 लोगों ने सहमति जताई और 60 लोगों ने सहमति नहीं जताई, वो बिल वहीं ड्रॉप कर दिया जाएगा, वो बिल वहीं ड्रॉप कर दिया जाएगा. 100 सांसद में मेजोरिटी कब होगी? जब 51 सांसद उस बिल का समर्थन करेंगे. when the majority will support that bill, then that bill will be passed in the Lok Sabha. लोकसभा में किसी भी बिल को पास करने के लिए, अप्रूव करने के लिए मेजोरिटी प्रूव करने पड़ती है. यानी जितने सांसद है उसमें से 51% से ज्यादा सांसद उस बिल के साथ सहमत चाहिए, तब जाके वो बिल आगे राज्यसभा में जाता है. अगर मेजोरिटी लोकसभा में प्रूव नहीं हुई तो वो बिल वहीं पे खत्म हो जाता है. हम अज्यूम करते हैं कि इन्होंने जो बिल बनाया दैट वाज प्रेजेंटेड इन द कैबिनेट, कैबिनेट में भी मेजोरिटी लगती है. अगर कैबिनेट में मेजोरिटी नहीं मिली तो वो लोकसभा में आता ही नहीं है. इट इज टू बी फर्स्ट प्रेजेंटेड इन कैबिनेट मीटिंग, इट विल बी पास्ड बाय मेजोरिटी, इट इज टू बी पास्ड बाय मेजोरिटी इन द कैबिनेट मीटिंग. After it is being passed by the majority in the cabinet meeting, it is presented in the Lok Sabha. In Lok Sabha, it is put to discussion. Then with the majority, it is passed in the Lok Sabha. लोक सभा में पास होने के बाद वो जाता है राज्यसभा में. कहां जाता है? राज्यसभा. राज्यसभा के सांसद अलग होते हैं, है ना. When it goes to राज्यसभा, it is put to voting in राज्यसभा. Again, it is to be passed by majority in the राज्यसभा. लोकसभा में कैबिनेट की मीटिंग में मेजोरिटी चाहिए, पास होकर आएगा वो लोकसभा में, लोकसभा में मेजोरिटी चाहिए, फिर वो पास होकर जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में फिर से वोटिंग होगी, डिस्कशन होगा, वोटिंग के बाद वहां पर भी मेजोरिटी आनी चाहिए, वहां पर भी मेजोरिटी आनी चाहिए. अगर राज्यसभा में मेजोरिटी आती है, अगर राज्यसभा में मेजोरिटी आती है, तब जाकर वो बिल फाइनल पासिंग के लिए जाता है भारत के प्रेसिडेंट के पास. किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट. क्वेश्चन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अच्छा तभी मैं बोलूं, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे. हाँ, मोदी जी. दलवी, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राजेंद्र प्रसाद यादव. कहां से लाया बे? काय नाव त्याचं? काय नाव आहे? अमित शाह. बाबा फेकून मारन काहीतरी. अमित शाह, रामनाथ कोविंद. ये मेरे देश का भविष्य है, ये मेरा देश का भविष्य है. जिसको ये नहीं पता कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज नॉट द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी. मिळाला जॉब आपल्याला. 1 किलो शेंगदाणे, अर्धा किलो साखर आणि छटक डाळ. बर, हेच करतो. क्या करेगा भाई साहब? कहीं जॉब इंटरव्यू के जाकर पूछा हु इज द प्रेसिडेंट, जूते निकाल के फेंक के मारेंगे तेरे को वहां पे. समझ रहे हो परभनी आगे क्यों है? इसलिए तरक्की हो रही है हमारे परभनी की. समझो, मुश्किल है बच्चों. द बिल इज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द कैबिनेट. आफ्टर अप्रूवल इन द कैबिनेट, इट इज प्रेजेंटेड इन द लोक सभा. When it is passed by majority in the Lok Sabha, then it is presented in the Rajya Sabha. After having the majority in both the houses of the parliament,
आफ्टर हैविंग 2 हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट में, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा में लोगों में से चुन के आए वाले लोग रहते हैं, राज्यसभा में जो चुने हुए लोग रहते हैं उनमें से कोई लोग वो चुनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज राज्यसभा। लोकसभा के लोग, विधानसभा के लोग, नगर अध्यक्ष, ये सब लोग मिलकर लोकसभा का व्यक्ति चुनते हैं, राज्यसभा का सॉरी राज्यसभा के इलेक्टेड पीपल होते हैं, नॉट फ्रॉम पीपल। जो इलेक्टेड व्यक्ति होते हैं वो मिलकर राज्यसभा के व्यक्तियों को चुनते हैं, राइट। राज्यसभा में जब किसी को चुनना है, जैसे राज्यसभा में कौन चुनकर आया, अपने बड़े बड़े साहब, क्या नाम है उनका, शिवसेना वाले संजय राउत। अब संजय राउत चुन के आया तो उसको लोगों ने वोटिंग नहीं किया, एग्जिस्टिंग खासदार आमदार जो भी है वो लोग वोटिंग करके उसको चुन कर लाते हैं। लेकिन संजय यादव जो हमारे खासदार हैं उनको चुनने के लिए हमने वोटिंग की, वो लोगों के आए हैं, तो वो लोकसभा के व्यक्ति। संजय राउत राज्यसभा के हैं, ठीक है। तो जब कभी भी बिल प्रेजेंट किया जाता है पहले कैबिनेट में, कैबिनेट में अप्रूवल के बाद वो आता है लोकसभा में, लोकसभा में अप्रूव होने के बाद मेजोरिटी के बाद वो जाता है राज्यसभा में। When the bill is passed by majority in both the house of the parliament, it is then sent to the president of India, जो कि नरेंद्र मोदी नहीं है, who is Ramnath Kovind. When the bill after passing by majority with both the houses of the parliament, when it is sent to Ramnath Kovind, the president of India, after the accent, after the signature, after the approval of the president of India, the bill will become law of India. जैसे ही प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर अपना अप्रूवल देके दस्तखत करके सिग्नेचर बन गया, उसी दिन से वो भारत के इस जमीन का कानून बन जाता है। समझ में आया लॉ कैसे बनता है? अब इसके बाद कभी जिंदगी में अगर कोई पूछे कि लॉ कैसे बनता है तो तुम्हारे पास उसका जवाब होना चाहिए। पहले क्या बनता है? बिल। बिल कहां जाता है? कैबिनेट में। कैबिनेट में जाने के बाद वो कहां जाता है? लोकसभा। लोकसभा के बाद राज्यसभा। सब जगह से मेजोरिटी से पास होने के बाद वो कहां जाएगा फाइनली? प्रेसिडेंट के पास, नॉट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के अप्रूव करने के बाद वो बन जाता है लॉ ऑफ द लैंड, हमारे जमीन का, भारत देश का एक कानून। इतना प्रोसीजर फॉलो करने के बाद हमारे यहां पर लॉ बनता है। आई होप एवरीवन इज क्लियर कि लॉ कैसे बनता है। तो मैंने आज आपको क्या चीज सिखाया? सबसे पहले बेसिक चीज कि लॉ कैसे बनता है, हाउ इज लॉ फ्रेम्ड। आज के पहले मालूम था कि कभी नहीं, आज पहली बार पता चला कि भारत में लॉ कैसे बनता है। और भारत की तुम नागरिक हो, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट कौन? नरेंद्र मोदी। मुश्किल है, अवगढ़ है। अच्छा एक और सवाल पूछूं। एनडीए के अभी कार्यकाल जो प्रेसिडेंट का है वो खत्म हो गया है। हु इज द न्यू पर्सन, नॉमिनेटेड पर्सन फॉर द एनडीए फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट? वो क्या? वो महिला प्रत्याशी है। अरे तीच आपली तीच रे, तीच आपली तीच रे, ती परवा भेटली होती मला, तीच कॉफी लॉन्चलाच होती माझ्यासोबत, कॉफी पिते, तीच ना? ठीक है। एनडीए जो पक्ष है उसके जो प्रत्याशी है उसका नाम क्या है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उसका पता करना और कल मुझे क्लासरूम में बताना कि एनडीए के प्रत्याशी न्यू वुमेन कैंडिडेट कौन है और कांग्रेस के जो पक्ष है अपोजिशन वाले उनका कौन है, उसका तो नाम बताओ। वो भी महिला है कि मेल है? कांग्रेस की जो टीम है अपोजिशन वाले, उनका जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है वो एक मेल पर्सन है और पहले मंत्री और रह चुके हैं, और जो एनडीए घटक पक्ष के जो प्रत्याशी है वो महिला है। इन दोनों प्रत्याशियों के नाम मुझे आप कल क्लासरूम में बताओगे और उम्मीद करता हूं कल क्लासरूम में आओगे। बीकॉम का क्लास है, बोलना जरूरी है। होप टू सी यू बैक टुमारो इन क्लास। ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी लर्नड हाउ इज लॉ फ्रेम्ड। First we prepare a bill. The bill is presented in the cabinet. After being presented in the cabinet, it is passed on to the Lok Sabha. After passing by majority in the Lok Sabha, it is sent to the Rajya Sabha. After being passed by majority in the Rajya Sabha, then it is sent to the president for his accent. When the president gives his accent,
becomes the law of the land. एक बार हमारे यहाँ कानून बन गया फिर वो कानून एप्लीकेबल हो जाता. बतौर भारतीय नागरिक, being the citizen of India, you are abided by that law if that is applicable to you. And all those laws which are related to business, all those laws which are related to business are called as mercantile law. फर्स्ट सेमिस्टर में 5 मर्केंटाइल लॉ देखने वाले हैं. द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, द पार्टनरशिप एक्ट, और कौन से दो, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ये 5 लॉ हम पढ़ने वाले हैं, जहां पर कल मैं आपको पहले लॉ के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसका नाम है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इतना मजा आएगा, हंस हंस के पागल हो जाओगे. कल हम मुंजा जी की शादी कटरीना के साथ कराएंगे. कैसे क्या कब वो कल तुम्हें पता चलेगा. तब तक के लिए थैंक यू. होप टू सी यू क्लास टुमारो.